وقت ہم موجود ہیں بہشت مصطفیٰ دارالیتامہ میں۔ آج یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا ٹرسٹ کے اہتمام یہاں پر یتیم بچوں کے درمیان عید گفٹ تقسیم کیے جائیں گے اور یہاں پر ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا۔ آئیے آگے چلتے اور پھر آج آپ کے سامنے میں بغیر کسی تعطل کے چاہوں گا کہ کیونکہ وقت قریب ہے اور میں اپنے ادارے کے بارے میں مختصر اور جامع جو ہے تعارف کروا تاکہ تمام لوگ جان سکیں کہ بہشت مصطفیٰ کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں اللہ خداوند عالم سے کہ ہماری اس نزدیکی اور اخوت کو بڑھائیں مستقبل میں انشاءاللہ، اور مزید انشاءاللہ ہم آہنگی کے ساتھ ایک رابطہ رہے۔ ہمارا ادارہ بہشت مصطفیٰ یتیم خانے اور دارالایتام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ادارہ 2013 میں ہمارا وجود میں آیا الابلاغ ٹرسٹ کے اندر۔ الابلاغ ٹرسٹ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے اور رسمی ادارہ ہے۔ ابتدا میں یہ بارہمولہ میں تھا، ابھی 40 میں مختلف پروجیکٹ شامل، اس میں ایجوکیشن ہے، قرآن سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ آج کل سب سے ایک واضح اور ایک بڑا جو ادارہ ہمارا طور پہ ہمارا مقصد یہ ہے اس ادارے سے یا دارالایتام سے کہ ہم ان بچوں کو اسلام آباد میں ان کو ایک ایڈمیشن دلاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم ان کو ہم دیں گے اور دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ بھی ہمارے پاس فرسٹ کلاس سے لے کر 1 کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور ایک یا ڈاکٹر بننا چاہے یا انجینئر بننا چاہے، اگر اس میں صلاحیتیں ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کروں کہ یہ جو ہمارے پاس بچے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یتیم ہیں، بلکہ بغیر سرچہ ہے ان کو لیتے ہیں، اور نہیں غریب بچے کو ہم لیتے ہیں۔ ہم اس بچے کو لیتے ہیں جو یتیم بھی ہو اور ساتھ غریب بھی ہو۔ تو میں اصل میں بیسیکلی تو میرا ایک تعلق ایجوکیشن سے ہے۔ میں کافی عرصہ یونیورسٹیز میں اور دینی مدارس میں پڑھاتا رہا ہوں بیرونی ممالک میں۔ میں جب ٹرسٹ ہم نے بنایا تھا بیسیکلی اس میں یہ بھی تھا کہ ہم احساس ہوا کہ ان یتیموں کی کیا دنیا ہے اور ان کی فیملیز کس طرح زندگی گزارتے ہیں، تو اس نے مجھے مزید اس فیلڈ میں اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میں شکر گزار ہوں اس بہشت مصطفیٰ آرفن ہاؤس کے جملہ عہدیداران، ذمہ داران اور محترم اور مسلمان ہونے کے ناطے اگر کبھی کسی کے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم جب کسی کو بڑا عہدہ منصب ایک نیچرلی موت بھی کسی کو دے سکتا ہے، اس لیے کسی بھی وقت آزمائش کے لیے ہر آنے والے کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی ہماری آج عید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے بچائے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا ٹرسٹ اوسلو ناروے کے چیئرمین محترم علامہ افتخار احمد چشتی صاحب جب آپ کی یہ معصوم چہروں کو دیکھ آئے، عیدی لے کر آئے، اور ہمارے الہادی ٹرسٹ کی طرف سے اس میں آپ کے لیے جوسز اور منرل واٹر، یہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آج قرآن کہتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو، کیونکہ تمہارے اپنے بچوں کو یتیم ہوتے ٹائم نہیں لگے گا۔ کسی بھی لمحے میں ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ کسی نے بھی ہم میں سے ایسا پانی نہیں پیا ہوا کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اور آج اگر آپ کے والدین کا سایہ آپ پہ نہیں تو کل میرے والدین کا سایہ نہیں رہا۔ اسی طرح دنیا میں
आते भी हैं लोग और जाते भी हैं। आने की तरतीब है पर जाने की तरतीब नहीं है। मुझे यकीन है कि जितनी खूबसूरत आपको ये दरसगाह मोहतरम नदीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यहाँ आकर ये सब मंज़र देखकर और क्योंकि ये बच्चों के साथ जो ख़ुसूसन इन बच्चों के साथ जो लम्हात गुजारने का वक्त मिला है, ये बहुत ही आप यकीन करेंगे एहसन है। और इसको देखते हुए मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें आपके लिए, बाकी तो अल्लामा साहब ने शादी हाल, मार्कीज़, होटल, रेस्टोरेंट, फूड कैटरिंग, टेंट सर्विस और ये आउटडोर कैटरिंग और जो उसके अलावा जो सैर व तफरीह के मकामात हैं, इसकी जो तंजीम है हॉस्पिटल। आजकल हम वैसे तो बहुत ही क्राइसिस में है ये इंडस्ट्री, क्योंकि इस कोरोना की वबा में सबसे मुतासर ज़्यादा ये इंडस्ट्री हुई है। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि आप अच्छा अपने एडमिशन के लिए हेल्प की ज़रूरत होगी, हम हाज़िर हैं आपके लिए। अगर किसी पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर आपको शादी हाल इस्लामाबाद का माहौल दिखाना चाहते हैं तो हम आपको वो माहौल भी दिखाएंगे, इस्लामाबाद का हो, रावलपिंडी का हो, तो उसमें इंशाल्लाह आपकी जो भी मदद हो सकेगी हम इसमें आपका भरपूर साथ देंगे। और ये आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे लोग मिल गए। अल्लाह से पूरा यकीन है कि जिस इखलास के साथ ये काम कर रहे हैं, आपको भी अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और तौफीक देगा कि आप एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे शहरी बनेंगे। बहुत शुक्रिया। ये मुश्किल वक्त पूरी दुनिया के लिए है और अल्लाह से तजारत का बेहतरीन वक्त भी मुश्किल वक्त में होता है। और जब आपके पास रिस्क का कोई दरवाज़ा ना खुल रहा हो तो फिर आप हुक्म है कि आप अल्लाह के साथ तजारत फरमाएँ। तो इनका जो है वो यहाँ पे एहतमाम किया गया और तमाम बच्चों को हमारी बहनें जो हैं वो मोहतरमा मरियम साहिबा और यासीना साहिबा वो अपने हाथों से ईदी तकसीम कर रही हैं। यकीनन ये काबिल तहसीन अमल है और यही वो ट्रेड है जिसका अल्लाह ताला ने यकीनी मुनाफा का है और ये सिक्योर ट्रेड है। ये तोहफे हैं आपके। फिर आपका जब प्रोग्राम आएगा आपको इजी होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मरियम फातिमा। इनसे जानते हैं कि आज यहाँ बहिश्ते मुस्तफ़ा दारुल यतामा में आकर इन्हें जो इनकी एक्टिविटी थी और इनकी यहाँ पहले भी आती रही हैं, तो इन्हें इनके रिव्यू लेते हैं कि इन्हें यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तमाम बच्चों को और जितने भी हमारे साथ ये मेरा पहला विज़िट तो नहीं, मतलब पहले भी हम लोग आते रहे और एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। आज हम जो जिस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आए हैं वो सैयदा फातिमा की तकसीम की है, खाना भी और पानी भी। और बेशते मुस्तफ़ा का एक यूँ कह लें कि एक दिली वाबस्तगी भी है मुझे इन बच्चों के साथ कि और जितना डिसिप्लिन जितना ऐसा हमने मैंने यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद हैं? आप जब पहले यहाँ पर आए हैं, ये बच्चे आप क्या इस बात से मुतमईन है कि यहाँ इनकी बेहतर देखभाल होगी? जी, जब हमने आना स्टार्ट किया तो उस वक्त यहाँ पे तकरीबन 60 बच्चे थे। अब माशाल्लाह से यहाँ पे 70 बच्चे हो चुके हैं और यहाँ पे ना सिर्फ इनकी कफ़ालत की जाती है, ये अच्छे स्कूल में पढ़ते भी हैं, इसके साथ साथ इनको जो है दीनी तालीम भी और इनके रहन सहन इनकी अच्छी तरबियत यहाँ पे की जाती है। और तमाम असातिज़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है और जितना भी स्टाफ है
मतलब हम लोग जब भी यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। और आप यहाँ क्या पैगाम देंगे आप आम लोगों जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके नाम पे पैगाम मैं यहाँ पे जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जितने भी हमारे नाज़रीन हैं और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर उनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जहाँ आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ईद पे और दूसरे मौक़ों पे, वहाँ इन बच्चों को भी हमारी ज़रूरत है। जब जैसे मैं ये समझूँ कि मेरा बेटा है, जैसे वो मैं उसके लिए कोई चीज़ ले रही हूँ तो मैं बेचती मुस्तफ़ा के बच्चों के लिए गिलास में देती हूँ। तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो जब अपने बच्चों के लिए लें चीज़ें इन बच्चों को ज़रूर देना। बहुत शुक्रिया। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, इंटरफेथ पे काम कर रही हूँ। और फातिमा सईदा फातिमा ज़हरा ट्रस्ट के कल मैं गई थी इनकी एक्टिविटी में हॉस्पिटल में जो हमारे साथ मौजूद है जी सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन जो कि यहाँ पर इस आसमान बहिश्त मुस्तफ़ा दारुल यतामा में रहते रहे हैं। आइए इनसे बात करें। मेरा नाम सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन है, आपको मालूम है। तो मैं आर्ट से क्लास करता हूँ और मैं मैट्रिक से यहाँ और अभी मेरा छोटा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी का है। आप मैट्रिक के बाद जब यहाँ पर आए, मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र आपने तय किया, आप क्या समझते हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट थी उसका आपके साथ या जो आपने यहाँ का माहौल पाया उसको कैसा पाया और लोगों का उसके बारे में क्या पाया? सबसे पहले बात तो यह है कि यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ, वरना ना तो मेरे पास इतने वसाइल थे और न मेरी मैं इतना पढ़ सकता हूँ और न हमारे ख़ानदान में किसी ने इतना पढ़ा। अलहमदिल्ला। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइए बहिश्त मुस्तफ़ा हेल्प कीजिए ताकि हम मेरे जैसे और भी जितने बच्चे हैं उनको भी आगे और उनको एजुकेशन मोहम्मद हमारी आखिरत में बख्शिश का जरिया बना। परवरदिगार आलम जितने मेहरबान दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस हमारे ताहिर भाई, दीगर अहबाब सब की हाज़िरी को खुदाने के जितने भी दोस्त जो मुआविन बने सबको दुनिया और आखिरत की खुदाइयाँ नसीब। हमारे नदीम भाई सोशल टीम